Historically, Mumbai's coastline was inhabited by communities who lived by the sea, with fishing as their primary source of livelihood. Even today, the Koli community continues to preserve that connection with the water. Today, Team CSR Journal visits the shores of Mumbai to spend time with the fishing community and understand their way of life. It's 7:30 in the morning, and while most of Mumbai is still asleep, these fishermen have already begun their day. For generations, the sea has fed this city, but very few of us truly understand the lives built around it. Today, we are spending an entire day with Mumbai's fishing community, not just to understand how fishing works, but to understand the people who return to the sea every single day despite its uncertainty. Before the city fully wakes up, another world is already moving towards the sea. For generations, Mumbai's fishing communities, among the original inhabitants of the shores, have lived in the rhythm with the tides. हम लोग पहले से यही है मुंबई में। मुंबई बोलले तो हम कोली लोग का ही है, बोलते हैं मुंबई आमच्या कोल्यांची, वैसा ही हम लोग का मुंबई है। हम लोग स्थानिक रहिवासी है यहाँ पे। हमारा बचपना यहाँ का जो ये मुंबई आमची कोल्यांची, बचपन के साथ हमारा पापा का पापा यही हमारा व्यवसाय। पहले बॉम्बे को नाम भी नहीं था बॉम्बे करके, बॉम्बे का मुंबई हुआ। तो यहाँ पर तभी से बस्ती है कोली लोगों की, यहाँ पर ही यहाँ से ही है। मतलब प्रॉपर एक ओरिजिनल जो है वो मुंबई के मतलब रहवासी मतलब कोली समाज है। Before stepping into the sea, fishermen first take the name of God, praying for protection, luck, and a safe return home. Fishing is far more difficult than it appears from the shore. Out here, time does not move by clocks, but by tides, weather, and the mood of the sea. Some journeys begin before sunrise, others in the silence of midnight. In these compact boats, fishermen travel deep into the waters, casting their nets with hope and uncertainty. Every catch demands strength, patience, and teamwork, because at the sea, no one survives alone. कभी रात को 3 बजे भी जा सकता है, कभी रात को 12 बजे भी जा सकता है, कभी 1 बजे भी जा सकता है, जाएगा कभी भी रात को, और सुबह हम लोग आ सकते हैं। सुबह आएगा ना हम लोग तो फिर मच्छी सफाई करने का, वो कचरा एक साइड में निकालने का, और मच्छी एक साइड में निकालने का, फिर उसके बाद सब टोकरी में डाल के मच्छी बेचने के लिए जाने का, उसके बाद फिर बोट भी धो के फिर अपन घर पे जाने का, उसके बाद फिर थोड़ा खाना पीना खा के थोड़ा आराम करने का, फिर अपना ऑफिस ड्यूटी वापिस चालू हो गया। आज मैं 4 बजे निकला था मच्छी मारने को। हाँ, तो मेरे को पूरा 6 बजा मच्छी निकालने में, चुनने में और वो भेजने में। 6 भी नहीं, 7 बजा, मतलब 3 घंटा मेरा काम में गए। पहले जो जाते थे मच्छी पकड़ने के लिए तो ऐसा था कि जो घर की जो वाइफ है उसका हस्बैंड मच्छी पकड़ने जा रहा है, तो जो हम लोग में सिंदूर लगाते वाइफ, तो वो पहले ही मतलब वो पोंछ देती थी कि मेरा जो हस्बैंड है वो मच्छी पकड़ने जा रहा है इतने दिन के लिए, तो वो भगवान अगर कुछ सलामत आ जाए बट कुछ हो जाए, इसलिए वो पहले ही पोंछ देती थी, मतलब जो था कुंकू। In most Indian households, cooking is often seen as the responsibility of women, but within the Koli community, many men proudly take charge of the kitchen during weddings, community gatherings, and even while out at the sea. On the boat, fishermen cook for themselves using traditional recipes and spices passed down through generations. It is these old methods and flavors, they say, that give Koli food its unique taste and identity. जो हम शिप पे जाते हमारे जो कोली मैन्स है, तो उनको वहां पर की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है खाना बनाने का, तो तब से उनको आदत है कि खुद के लिए प्रिपरेशन कर सकते, तो वो घर पे भी जाके खुद के लिए खाना भी बना सकते हैं। हम लोग बोट पे खुद खाना बनाते हैं, चावल बनाता है, मच्छी बनाता है, जो कुछ भी मच्छी आता है वो हम लोग खुद बना के खाते हैं। हम लोग को ऐसा कुछ जरूरत नहीं रहता वाइफ बना के दो और हम लोग खाओ, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को सब जन बनाता है आता है। तो कोली मसाला बोला जाता है, वो मिर्ची, सूखा मिर्ची है, काफी गरम मसाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसे ड्राई किया जाता है और वो मसाला घरगुती मसाला होता है, वो उसको कूटने के लिए दिया जाता है। वो कूटने के बाद फिर जो हमारे जो ऑथेंटिक फिश जो ट्रेडिशनल जो खाना बनता है घर का डेली रूटीन का, तो उसमें हम डालते हैं वो। Beyond the hardships of the sea, the Koli community continues to preserve its culture through music, food, dance, and tradition that still survive along Mumbai's coastline. मी ढोलकर
समुद्राचा राजा. सुर का हमारा एक पोशाक है कोली लोगों का. तो वो हम जो हमारे ग्रैंडफादर्स थे, हमारे डैडीज थे पहले के जो ग्रैंडफादर्स, वो पहले से ही वो जो सुरका करके है वो पहनते हैं. और लाल टोपी है हमारी एक शान है, और ये तो पहना ही जाता है क्योंकि ऐसे हम मच्छी पकड़ने के लिए जाते तो धूप लगता है, तो ये टोपी का हम यूज करते थे वो टाइम. तो वो टोपी हम पहले से लेके अब तक ऐसे यूज कर रहे हैं. बट अभी थोड़ा जमाना मॉडर्न हुआ है तो थोड़ा फैंसी टोपीज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं. सबको लगता है कि कोली लोग हैं वो काफी पैसे वाले हैं, सोना है. बट सोना तो मेहनत देख रहे हो कि धूप में हम बैठते घूमते मच्छी पकड़ते, तब जाके वो हमारे लिए हमारा इन्वेस्टमेंट. पहले के जमाने में क्या था, कुछ नहीं. तो एक इन्वेस्टमेंट मतलब हम गोल्ड में पूरा इन्वेस्ट करते थे. और घर पे तो पहले के घर ऐसे था, लॉक सिस्टम नहीं था, तो जो गोल्ड था इन्वेस्ट करते थे, वो गोल्ड हम खुद पहनते थे और मच्छी पकड़ने जाते थे. तो वो गोल्ड अपने इसमें सेफ रहेगा, तो इसलिए कोली लोग प्रसिद्ध है गोल्ड के लिए. मैं यहाँ देख रहा हूँ मौसी, ये कचरा ज्यादा दिख रहा है और मछली कम दिख रहा है. मावऱ्याचं आमचं नाच होतं सगळा. सगळं मावळाचं मग काय हे मावरे मिळत बी नाही, कचरा सगळं टाकून टाकून. खाडीचं पाणी बघ कसं झालं तो, सगळं घाण सगळं पाणी. हे असं कागद येतात ते बघ, काय करायचं. आमची मुलं बाळ हे बघ, मुलं बाळांना घेऊन आलो. I'm very surprised to see that more than the fish, there are wrappers of gutka, chocolates. I have talked to more people and they are saying that it is killing the fishes as well. From past 10 years, the fishes have been decreasing in the Khadi. Water that were once clean and full of marine life are now slowly turning into dumping grounds for plastic waste. Wrappers, bottles, and garbage thrown carelessly into the sea have deeply disturbed the marine ecosystem. At the same time, large-scale construction, coastal roads, and the cutting of mangroves are changing the coastline itself, affecting not only the sea, but also the livelihoods of fishing communities who depend on it every day. अच्छा, 3 बजे से फिर क्या क्या मिला है आज आपको? आज ये देखो, मच्छी से ज्यादा तो इसमें देखो प्लास्टिक वेस्ट है ज्यादातर. आप किधर बहुत अंदर तक गए थे? हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर तक. अंदर था. जैसे अभी देखा आपने, कोस्टल रोड्स के प्रोजेक्ट बहुत फास्ट चल रहे हैं, इसकी हाँ. वजह से बहुत मैंग्रोव काटे गए. जैसे आपने अटल सेतु में देखा, हाँ वहाँ पर भी बहुत उसका ये हुआ था, नवी मुंबई साइड. हाँ हाँ हाँ. उसके बाद अभी यहाँ पर चल रहा है मुंबई का कोस्टल रोड. अच्छा. जू से यहाँ तक चल रहा है, जो उसमें मैंग्रोव कितने काटे गए. उसके वजह से क्या हुआ है कि देखो प्लास्टिक सब है, लोग वहाँ पर डाल रहे हैं, वो वाटर में आ रहा है. हाँ. और हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, फिर भी देखो अभी बीएमसी जैसे वहाँ पर काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा देखो हाँ. ऊपर से उठा के चले गए. हाँ. अभी यही प्लास्टिक हम लोग वापस पकड़ के लाते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं. आपका ड्यूटी है कि बीएमसी का, कि आप खाली यहाँ से उठा के लेके जाओ. बराबर. हम लोग पानी से निकाल के आप लोग याद दे सकते हैं. हम लोग निकाल के तो आने, हम लोग काम छोड़ के नहीं जा सकते ना अपना. तो उतना तो आपको करना चाहिए, मतलब बीएमसी को. प्लास्टिक का देखो अभी कितना यूज हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो. इतना प्लास्टिक का यूज हम लोग थोड़ी करते हैं. हम लोग का क्या यूज होता है, सिर्फ मच्छी ऊपर लाना और सेल करना. ये प्लास्टिक लोग डालते हैं, सिर्फ इतना अवॉइड करो कि प्लास्टिक वाटर में मत रखो. जो भी अपना प्रोसेस है वो करो, लेकिन ऊपर ही प्लास्टिक रहना चाहिए. Many young people from the Koli community are slowly moving towards different professions as education and opportunities expand beyond fishing. Yet, even as lives begin to change, many still try to preserve the traditions and the identity they have inherited from generations. The future of this community now rests in the hand of its younger generation, balancing modern aspirations with a deep connection to the sea. Today, we spend the day with Mumbai's fishing community, trying to understand not just the process of fishing, but the culture, traditions, and generations of history connected to the sea. But alongside that history, now comes uncertainty. Pollution, shrinking coastal spaces, and changing waters are making survival increasingly difficult for many fishermen. While efforts are being made to support the community, many still feel that struggle remain on the edge of visibility in the city that continues to move faster around them. And yet, every day, they continue to return to the sea, carrying with them a relationship with these waters that existed long before Mumbai became the city we know today. This is Sudo Sudhanshu, and you're watching the CSR Journal.